morning, all of you. Students online, good morning. Nobody has come yet, so let them come. So as I told you yesterday, I was going to start today the tenses, right? हम लोग tenses शुरू करने वाले आज. So what is the meaning of tense? I'm so much tensed. क्या ये वाला tense है? Isn't it? I'm so much tensed. मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया है. I'm not talking about that tense here. So I'll remove this key, right? So we are just talking about tense, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं. There are so many grammatical concepts which we are learning since our childhood, isn't it? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है, उनको टेंस से ही डर लगता है. I don't know why. अगर आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए, so English will be very easy for you, or the easiest language for you. So that is why we have to fully concentrate on tenses, because there are so many chapters which are depending on tense. Like, जैसे for example we can see active voice, passive voice in the direct and indirect speech. There are so many comprehensions as well which are depending on the tenses. That means where we are making mistakes, the verb should be in which form, which is a helping verb, who is subject, whether it is in singular form or plural form, isn't it? क्योंकि क्या होता है जब हम लोग वाक्य बनाते हैं उसके अंदर helping verb जो रहते हैं, right? We are going to see later on what are those helping verbs. So most of the helping verbs they also depend on the subject. तो subject, object, then helping verb क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वह टेंसेस में किस तरह से बदलते हैं. So each and everything we are going to see with more and more examples in the tenses, right? Good morning Abhijit, Shubham, Aniket, Piyush. Good morning to all of you. So let's see, we are going to start tenses now. हम लोगों को पता है the very easy term or very easy definition of tense is that means a word or a word which shows the state of an action. मतलब वह कार्य जो है या जो भी काम है वह किस स्थिति में हो रहा है, मतलब वह कौन से काल में हो रहा है, in the sense, right? Whether it is in the present tense, whether it is in the past tense or in the future tense. So each and everything we can know or we can recognize with the help of the verb, also the helping verb. क्योंकि वाक्य के अंदर helping verb बहुत ज़रूरी होता है. उसके बाद में main verb जो होता है that is also play a very important role to identify the action is happening in which tense, right? So today we are going to start tenses, but before that I want you to know there are 3 types of sentences which we have to know very well. मतलब टेंस सीखने से पहले 3 प्रकार के वाक्य हैं, मतलब वाक्य के जो प्रकार होते हैं, तो उसमें से 3 जो मेजर जो टाइप्स है वह हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? लेट मी राइट एन एग्जाम्पल हियर, ओके? आई गो टू स्कूल. सो इस वाक्य को आप देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं स्कूल रोज जाता हूँ, ओके? सो आई कैन सी दिस थिंग आई डू ऑन डेली बेसिस. एवरी डे मैं डेली रूटीन मेरा है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट हु गोज टू द स्कूल, ओके? तो एक विद्यार्थी है जिसका यह डेली रूटीन है, हु एवरी डे गोज टू द स्कूल, ओके? सो इन दिस सेंटेंस ही इज मेंशनिंग हिज डेली रूटीन, मतलब संडे छोड़कर वह मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज स्कूल जाता है. दैट्स व्हाट एक्चुअली वी डिड इन आवर चाइल्डहुड. जब हमारे बचपन में हम लोग यही करते थे, राइट? सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग स्कूल जाते थे और संडे आता था तो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. So what I mean to say here, in this sentence we can see positivity is there. There is no negativity at all. बराबर है? I go to school, I go to gym, I drink tea, I go for run, I jog every day, I exercise every day, I write, I run. So everything is being in positive form. मतलब इसके अंदर नकारात्मक आपको कहीं भी नहीं लग रहा है, isn't it? So these kind of sentences are called as positive sentences, okay? Or assertive sentences, right? ये हो गया वाक्य का पहला प्रकार, that is positive sentence, okay? हम लोग यह क्यों देख रहे हैं?
क्योंकि टेंस के अंदर इस 3 प्रकार के वाक्य हम लोगों को देखने हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, द सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। इसी वाक्य को मैं नकारात्मक बनाऊंगा, मतलब आई गो, मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज नहीं जाता हूँ, देन इट बिकम्स नेगेटिव सेंटेंस। ओके, दिस इज वेरी बेसिक थिंग एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ग्रामर के अंदर टेंस का सबसे बेसिक जो चीज़ यही है सीखने के लिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी हैव टू यूज मेन वर्ब एज वेल। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस, सो बी श्योर अबाउट दिस. This concept should be clear. Okay, so this is a positive sentence or also called as a assertive sentence. The next one, if I want to convert this sentence into the negative form, how should I write it? I do not go to school every day. मैंने यही तकलीफ है, I do not go to school every day. मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ. Of course I don't go school every day because Sunday is there. Isn't it? I can also call because there is a fun day in between. So that is why I don't go on Sunday. So that is why this sentence has become negative sentence. जिस वाक्य के अंदर आपको नकारात्मकता दिख रही है, मैं नहीं जाता हूँ, रोज नहीं जाता हूँ. So that is why this kind of sentences are called as negative sentence. Okay? This kind of sentences are called as a negative sentence. अभी मैं यहाँ पर सवाल पूछूंगा. 2 प्रकार के सवाल हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज yes no type. Let's see. I'll write a sentence one first and then I will talk to you. Okay. There are 2 types of interrogative sentences. First one हमने देखा positive. Second one is negative. Third one that we are going to talk about, that is an interrogative sentence. Interrogative sentence के 2 प्रकार होते हैं. The first one is yes no type and the second one is WH type. हम लोग यह बचपन से सीखते आ रहे हैं. लेकिन sometimes we get confused what is yes no type and what is WH type. So I am going to write a sentence here of the yes no type. So I have used here do as a helping verb for present tense, that is simple present tense. So I use this in the beginning of the sentence to make an interrogative yes no type sentence. So the sentence should be start with the do. So do I go to school? Question mark should be there, very important. क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन मार्क के भी मार्क्स कटते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ओके. बट इन द एग्जाम यू माइट फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. देयर माइट नॉट बी अ क्वेश्चन मार्क एज वेल. सो दैट इज आल्सो अनदर एरर इन द सेंटेंस, isn't it? So in this sentence we can see this sentence is starting with the helping verb. So these kind of sentences are called yes no type sentences. Yes no type sentences का मतलब ये होता है, एक तो उसका जवाब हाँ आएगा या ना आएगा. That means अगर आपने सिर्फ yes कह दिया तो भी आंसर मिल गया, या फिर no कह दिया तो भी आंसर मिल गया. Let's see. Do I go to school every day? क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ? Yes. या फिर मैंने कह दिया Do I go to school every day? No. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. Either I can say yes or no. तो जिस जवाब का आंसर yes या no में काफी हो जाए, this kind of sentences are called as yes no type sentences and nothing else. And yes no type sentences always starts with the helping verb. Very very important. If you want, you can write down a small note there. Yes no type sentences always starts with the helping verb. Yes no type sentences always start with the helping verb, right? ये मंत्र याद कर लीजिए. So there won't be any confusion in the future. Okay? Okay. Next one. हम लोगों ने WH word सीखे हैं. What is the meaning of WH word? Which are WH words? इसके पहले भी हम लोगों ने देखे हैं WH words. Let me write down here only. Why, where, who, isn't it? Then, what? Tell me. When, where, which, isn't it? Whom. इसके साथ में for whom भी लगा सकता हूँ मैं. For whom. When के साथ since भी लगा सकता हूँ. Since when. Right? There are so many WH words which actually we are listening and also we are working on it. तो इस प्रकार के जो WH words होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द है हम लोग यूज करेंगे
टू कंस्ट्रक्ट अ WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस बनाने के लिए इसमें से कोई भी एक वर्ड जो है हम लोग यूज करेंगे, बट वी हैव टू यूज इट डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। मतलब वाक्य जो प्रकार है उस हिसाब से हमको WH वर्ड यूज करना है। लेट्स सी, हम लोग इसको फिनिश करते हैं, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस विद द सेम बाय यूजिंग WH टाइप, सो आई विल यूज व्हाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। अगर आपको इन दोनों में अगर डिफरेंस देखना है तो पहला वाक्य बनता है आई गो टू स्कूल एंड आई डू नॉट गो टू स्कूल। मतलब इसके अंदर ये डू जो है ये एडिशनल आया है, इज़न्ट इट? पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव आई एम जस्ट टेलिंग यू अनदर मंत्रा हियर, ओके, टू रिमेंबर इन द फ्यूचर एज वेल। अभी यहाँ पर यस नो टाइप सेंटेंस है एंड दिस इज WH टाइप। दिस विल हेल्प यू ऑल। यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसके अंदर सिर्फ WH वर्ड इट गोज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। WH वर्ड जो है वह सिर्फ बिगिनिंग में जाता है। लेट्स सी, जो आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? व्हाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? कैन यू सी डिफरेंस बिटवीन दिस फोर सेंटेंसेस? अगर आपको यह फर्क समझ में आ गया टेंसेस के अंदर, सो टेंसेस विल बी इन योर पॉकेट and it will be the easiest part for you to understand, क्योंकि आगे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स बहुत सारे टेंसेस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको यह चार चीजें समझ में आ गई, so nothing will be like easier like a tense. Done? Is this done? Okay. आपने लिख लिया यह सब? Okay, very good. Students online, if you have any confusion, please stop me in between. Okay. Now we are going to talk about tenses. जैसे मैंने आपको बताया, which describes the action or its state. मतलब वह एक्शन कब हुआ है वह बताने के लिए, कौन से काल में हुआ है, हम लोग टेंस का उपयोग करते हैं, राइट? सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, वी नो वेरी वेल। हमें पता है कि टेंसेस के 3 प्रकार होते हैं, हम रट चुके हैं, हमको पता है, सब कुछ पता है, मराठी में सीखा है, हिंदी में सीखा है, इंग्लिश में भी सीखा है, और कोई भाषा है तो उसके अंदर भी सीखा है, इज इट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, द फर्स्ट वन इज the first one is we are talking about first, that is present tense, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान की बात करेंगे सबसे पहले, isn't it? So we are talking about the present tense first, present tense. Okay, जो चीज भूतकाल में हो चुकी है, जो चीज भूतकाल में हो चुकी है, so it will be considered as a past tense. Okay, और जो चीज भविष्य में आने वाली है या फ्यूचर में जो होने वाली है, सो देयर वी कॉल इट एज अ फ्यूचर टेंस। सो राइट नाउ आई एम इन प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं, राइट? सो वी आर राइट नाउ वी आर इन प्रेजेंट टेंस। मैं कल सीख रहा था, दैट विल बी इन द पास्ट टेंस। सो दिस इज पास्ट, जो हम लोगों ने कल देखा था, यह प्रेजेंट है, हम फिलहाल प्रेजेंट में है, और हम कल क्या सीखने वाले हैं, दैट विल गो इन द फ्यूचर टेंस। यह चीज हम सबको क्लियर है सर, इसमें नया कुछ भी नहीं है, आपने बताया। बट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग डेज, और वह हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, उनका उपयोग किस तरह से करते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। लेकिन उससे पहले देखते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, इसके 4 प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 के फिर से 4 उप प्रकार होते हैं जो हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव, राइट? इसीलिए मैंने आपको वो 4 प्रकार शुरुआत में बताया। सो लेट्स सी, प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला प्रकार है या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एल्स वी कैन कॉल इट आल्सो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है, मतलब जो डेफिनेटली वी डोंट नो एनीथिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडेफिनिट टेंस, बट इन सिंपल लैंग्वेज we will call it as simple present tense. The second one that we are going to talk about is present continuous tense, मतलब चालू वर्तमान काल, मतलब जो कार्य फिलहाल चल रहा है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, so this action is happening right now, so that is why it will be called as a present continuous. The next one is present perfect.
Okay, present perfect. And the last one is present perfect continuous. ये इसके 4 प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, इसके 4 प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं. हम लोग विल ट्राई नो जितना जल्दी हो सके विल ट्राई टू फिनिश टेंसेस बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टिल पेंडिंग फ्रॉम आवर साइड. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इस तरह से जब 4 प्रकार हम लोगों ने सीखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, फिर वही 4 प्रकार आते हैं. डोंट गेट टेंस्ड, ओके, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया इट विल बी इजियर फॉर यू. अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार. कौन से 4 प्रकार सीखे थे हम लोगों ने अभी? असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस एंड डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस. जिस तरह सिंपल प्रेजेंट के 4 है उसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस के 4 है, परफेक्ट के 4 है और इसके 4 है. कितने हो गए? 16, isn't it? 16 टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर सीखने वाले हैं. The same thing applies with the future, past tense. When we talk about the past tense, same thing is there. Simple past tense, then past continuous tense, then past perfect tense and past perfect continuous tense. ये 4 प्रकार मेन प्रकार हो गए. उसके फिर से 4 प्रकार. That means let me write it here. It's simple past tense, it's past continuous, then is past perfect tense, okay, and the last one is past perfect continuous. तो इसके फिर से 4 प्रकार हो गए. So again 16 plus 16 and same thing goes with the future tense as well. Future tense के फिर 4 प्रकार आने वाले हैं, right? So let's see again the simple future tense, okay, then future continuous, then future perfect and future perfect continuous. Again इसके 4 again 16 3 जा 48. मतलब 48 टाइप्स के सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं. लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर सिर्फ नेगेटिव के अंदर सिर्फ नेगेटिव वर्ड जोड़ना है विद द हेल्पिंग वर्ब, इट बिकम्स नेगेटिव, इजंट इट? और यस नो टाइप के साथ सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड शुरुआत में लगा दिया, इट बिकम्स डब्ल्यूएच टाइप. सो इट्स वेरी इजियर. आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि हम लोगों को कहाँ पर क्या ऐड करना है एंड देन इट बिकम्स टेंस पार्ट. दैट मींस बिकम्स अ कंप्लीट सेंटेंस. क्या आपको यह समझ में आ गया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हियर? ओके. जब भी हम लोग कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, उस वाक्य के अंदर हमको सब्जेक्ट मिलता है, ओके, उसके अंदर हमको सब्जेक्ट मिलता है, उस वाक्य के अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब मिलता है, isn't it? और क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है, प्रीपोजिशंस मिलता है, कंजंक्शंस मिलता है, isn't it? That means whatever the parts of speech we have learned, so each and every word can come in the tenses. Then only we can make a sentence, isn't it? Or we can construct a sentence. लेकिन मैंने यहाँ पर 2 पार्ट बनाए हैं, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब. So everything depends upon this. सब चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती है. जिस तरह सब्जेक्ट होता है उसी तरह हेल्पिंग वर्ब हो जाता है. जब हम आगे सीखेंगे then I will explain to you. So which are subject? What is the meaning of subject? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्शन डूअर, कर्ता, कार्य करने वाला कर्ता, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, isn't it? So which are the subjects? सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत? No. I'm talking about I, they, you, we, he, she, it, singular noun, plural noun, isn't it? यह सारे प्रकार जो है जनरली वी यूज इट
or also we can use proper noun. It goes with the singular noun actually, लेकिन singular noun also goes with the common noun, isn't it? So whenever we talk about subject, यह सारे शब्द हमारे आंखों के सामने आने चाहिए हमेशा. So they always play a role of a action doer. वो हमेशा कर्ता का काम करते हैं वाक्य के अंदर, right? उसके बाद में हम लोगों ने जैसे देखा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, दैट इज अनदर थिंग. बट राइट नाउ वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द सब्जेक्ट्स कि यह जो है these are the subjects actually which do the action here. Okay, next, which are helping verbs? Which are helping verbs? If I am talking about present tense, अगर मैं present tense की बात करूँगा, yeah, if I am talking about present tense, we'll start with a simple present. So do, does, am, is, are, and in perfect tense, have, has. I'm talking about here present tense. Okay, I'm talking about here present tense. Then if I will talk about अब हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा डू डस हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर है और हैव और हैज है. यह सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर. अभी हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे. जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कौन से हेल्पिंग वर्ब है जो हम लोग यूज करते हैं. सो इन द बिगिनिंग वी टॉक अबाउट डिड. डिड ऑलवेज गोज विद द फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. डिड हमेशा कौन से फॉर्म के साथ जाता है वर्ब के, और थर्ड फॉर्म, yeah, it always goes with the first form, so don't get confused. When did is there, always V1, always V1, lock कर लीजिए इसको. Whenever we see did, it goes with the helping, that is the first form of the verb, क्रियापद का पहला रूप. Okay, so यहाँ पर did आया है helping verb. When we talk about the continuous tense, that is past continuous tense, instead of am is are we use was and were. When we talk about perfect past tense, we use had. We use had. Now, if I am talking here about future tense, it goes with the will plus V1. अभी future tense की बात कर रहे हैं. ये तो हो गया past tense. ये तो हो गया past tense. Now, if I am talking here about future tense, will go with the simple future tense, and when I'm talking about the will or shall also, yeah, we can also use shall here, लेकिन shall हम लोग use करते हैं we and I के साथ, and most of the time we use it to frame a question, yes or no type question. Okay, then when we are talking about the continuous future tense or future continuous tense, will be used. Will be or shall be also we can use, but we use will be here. Can't you see it? Can you see in the last? Okay. So we are using will be, and when we are talking about the perfect future tense, we'll use will have. We will talk about will have. So let's make a revision again. Let's revise it again. Do, does, am, is, are, have, has, with present tense as a helping verb. When we talk about past tense, did, was, were, have with the past tense, and when we talk about future tense, will, shall, will be, and will have. This goes with the it goes with the future tense. तो यह आपको अगर समझ में आ गया, या आपको इसके हिसाब से अगर if you want to identify the tense, ये आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे. यह आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे टेंस पहचानने के लिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं एक बंदे के 3 नाम, घर के अंदर आपका अलग नाम है, दोस्तों ने अलग रखा है, और सर्टिफिकेट के ऊपर अलग नाम है. Isn't it? So they are also called as a auxiliary verb. Okay, auxiliary verbs. I'm not talking modal auxiliaries. Modal auxiliaries अलग होते हैं. So हम लोग इसको modal auxiliaries नहीं कहेंगे. These are auxiliary verbs or helping verb, or also we can call them as tense indicator. मतलब auxiliary verb कहा जाता है, ये helping verb वाक्य के अंदर हमको मदद करता है
वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब, और आल्सो यू कैन कॉल एज टेंस इंडिकेटर, जो हमें टेंस बताता है कि कौन सा टेंस चल रहा है वाक्य के अंदर, राइट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हियर? किसी को कुछ पूछना है? ओके। अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि डस कब, डू कब जाएगा, एम एस आर कब जाएगा, हैव एस कब जाएगा, यू विल कंफ्यूज हियर, ओके। बट इन सिंपल मैनर एक चीज याद रखिए, अगेन सिंपल टेंस, सिंपल, then this is continuous tense and this is perfect tense. Same thing goes here as well. Simple tense, this is continuous tense, this is perfect tense. Same thing goes here as well. Simple future tense, then this is continuous future tense and perfect future tense. समझ में आ रहा है? मतलब तीनों चीजें जो है मैंने इस तरह से लिखी है कि there won't be any confusion in the future. So if you want, just write a small note here. This above one is for all simple tenses, the second one for all continuous tenses, and this third one for all perfect tenses, present, past and future. Done? जिस तरह मैंने आपको बताया था, we are going to start the tenses today. So we'll start our session with the present tense. Okay, we are going to start our session with the present tense. So let's see. जब हम लोग स्पॉट द एरर्स पे जाएंगे, देन आल्सो वी कैन डिस्कस जनरली वो किस तरह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पर वो लोग गलतियाँ डालते हैं, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई देम, ओके। विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज आल्सो वी कैन कॉल एज अ वर्तमान काल, ओके। सो द फर्स्ट टाइप इज सिंपल simple present tense. So what does simple tense tells us? What does it tell us? What does the simple present tense tell us? It tells us that means the things which we do on daily routine. ऐसी चीजें हम लोग जो रोज करते हैं, जो हमारी आदत है रोज करने की. So generally we use the things to mention here which we do on daily routine. जैसे मैं रोज उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, देन खेलता हूँ, मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलता हूँ, स्टडी करता हूँ, I eat my food, isn't it? So each and everything where we mention, it goes in the simple present tense, but it goes with the first form. क्रियापद के 4 प्रकार हम लोगों ने सीखे थे, V1, V2, V3 and V4, right? एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ. When I talk about V1, V2, या मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. So there won't be any confusion with the students, जिसका ये मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है. So whenever we talk about V1, if I am talking about look means देखना, isn't it? Look. So when I say V2, it goes with the second form, that is look, looked, and again ed is there. So that is again looked, look, looked, looked, and V4 goes with the ing form. That means looking, look, looked, looked, looking, isn't it? So it's very easy to identify V1, V2, V3, V4. अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर confusion है, still they can write it down. So there won't be any confusion again in the future. So when we are talking about simple future tense, इसका फंडा बहुत easy है. The things which we do and on daily routine, we mention it here. उसका structure कैसे देखते हैं? सबसे पहले positive sentence देखते हैं हम लोग, okay? Positive sentence या assertive sentence, okay? So what is the structure there? Subject plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर और एक चीज मेंशन करना रह गई है. व्हाट इज इट? इन द ब्रैकेट आई विल मेंशन एस और सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट. क्रियापद के साथ एस लगता है. क्यों लगता है? लेट्स सी द एग्जांपल हियर, ओके. सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका सबसे पहला प्रकार जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं. तो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको इस तरह से प्लस प्लस की भाषा जल्दी समझ में आती है, isn't it? सिर्फ सब्जेक्ट पकड़ो सबसे पहले, उसके बाद में क्रियापद का दूसरा पहला रूप अप्लाई कर दो, उसके बाद में कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ दो, सेंटेंस बन गया, isn't it? So that is why what I am going to do here, I am going to take any subject here, I am going to take any subject here. तो जो सब्जेक्ट हमने देखे हैं उसमें से सब्जेक्ट उठाते हैं. Okay, I am going to write we.
सो दिस इज माय सब्जेक्ट प्लस V1 क्रियापद का पहला रूप. ओके, चलो यहाँ पर लुक लिखा है, मैं यहाँ पर लुक लिख देता हूँ. वी लुक, अभी ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे कहां पर देख रहे हैं हम लोग? एट द स्क्रीन, इज इट? सो वी लुक एट द स्क्रीन. So we look at the screen. So that is why this we becomes subject V1 and remaining sentence we can consider as object. अगर देखा जाए at preposition होता है, दो आर्टिकल है and screen is a common noun. अगर देखा जाए तो हम लोग हर एक शब्द का parts of speech दे सकते हैं, but we don't want to go in so much detail. So we'll consider the remaining sentence as an object here. Okay. अभी आप लोग कहेंगे S yes किसके साथ यूज करते हैं? अभी हम लोगों ने जब प्रोनाउन सीखा था उस समय हम लोगों ने सीखा था दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन होते हैं? ही, शी, इट, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. इज इट? प्रोनाउन आल्सो, सॉरी प्रॉपर नाउन. तो इसमें से आपको कुछ भी दिख जाए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, वी हैव टू यूज एस ई एस विद द वर्ब. क्रियापद के साथ एस ई एस लगाते हैं. अभी मैं यहाँ पर वी की जगह ही लगाता हूँ. लेट्स सी, ही एट. ओके, व्हाट इज एन एरर इन दिस सेंटेंस? दोनों वाक्य एक जैसी ही है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है. इसके अंदर गड़बड़ तो कुछ नहीं लग रही मुझे. Yeah, it is supposed to be S here, isn't it? क्योंकि he comes under the category of third person singular. Third person singular, first person हमेशा हम खुद होते हैं, I in singular and we in plural, isn't it? Second person हमेशा हम दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ बात कर रहे हैं, so you become the second person, and third person जिसके बारे में हम लोग चुगलखोरी कर रहे हैं. और else we are talking about the third person, right? We are gossiping about someone, so the third person becomes the third person. Oh, he is very nice guy, she is very intelligent. Okay, it barks in the night, वो रात को ही भूखता है. I'm talking about a dog here. Okay, again singular noun. So whenever we talk about common noun, again it considered here as a singular noun here. So I can say a dog, a cat, right? A lion, a lion pounces, right? A tiger roars, जोर से गुर्राता है. So I'm using S there. Proper noun, Ramesh, Rakesh, whatever the name is there, we use SES with the verb. So इसको अलग से लिख लीजिए. Simple present tense. आगे यह present perfect में भी काम में आने वाला है हमको. Okay? So these all are the third person singular. Okay? These all are the third person singular. तो आपको जब भी इस प्रकार के कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर मिल जाए, we have to use S or ES with the verb. Let's take one more example here. They study early in the morning. They study early in the morning. मतलब वह सवेरे अभ्यास करते हैं, सवेरे उठकर जल्दी उठकर अभ्यास करते हैं. So I can see this is their daily routine. वो उनका रोज का काम है, तो वो रोज सवेरे उठते हैं और अभ्यास करते हैं. So if I use here she, so will it be correct if I say she study early in the morning? She studies. जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि नंबर नाउन्स के अंदर, राइट, नंबर नाउन्स को हम लोगों ने जिस तरह देखे थे कि अगर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टडी, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग goes with the same. So while we are talking about consonant and vowels, right? तो यहाँ पर देखिए y आया है, y से पहले यहाँ पर consonant है. So what we have to do here, we need to remove y and we have to use IES there. We have to use IES.
जो नंबर नाउन्स में हम लोगों ने नियम देखे थे, सो मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाई हियर एज वेल. सो व्हाट वी हैव टू डू, शी स्टडीज, मैं इसके अंदर वाई निकालने वाला हूँ अभी, एंड आई विल मेंशन इट स्टडीज बिकॉज शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. राइट, इज दिस concept clear with you? Right, so we look at the screen, he looks at the screen, they study early in the morning, she studies early in the morning. तो जब भी इनका उपयोग करेंगे वर्ब के साथ एस एस लगाना है. ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, लेट्स मेक दिस सेंटेंसेस नाउ नेगेटिव. व्हाइल मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस, let's see the structure first. This is the structure. Do not और does not. हम लोग do not को don't भी कहते हैं और does not को doesn't भी कहते हैं. अगर आपको वाक्य के अंदर don't भी दिख जाए, so it is don't, that is do not, and doesn't दिख जाए, that means does not. Again the same thing applies here. We use does not for third person singular. अभी आप देख सकते हैं do के साथ यहाँ पर es लगा है, बराबर है. हमने कहा था verb के साथ ses लगता है if the subject is third person singular. So the same thing is happening here. Do जो है do not, इसके साथ I they you यूज करेंगे और does not के साथ third person singular का उपयोग करेंगे. Let's see the example now here. Positive को हम लोग negative करेंगे. सारंग does not dance well. अभी यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट का उपयोग किया है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. राइट, सो सारंग इज थर्ड पर्सन सिंगुलर हियर, सो आई हैव यूज्ड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब. ये डू नॉट और डज नॉट जो है दे आर हेल्पिंग वर्ब बट दे आर इन नेगेटिव फॉर्म. डू डज, इस तरह मैंने आपको लिख के दिया था डू डज. सो डू डज इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब हियर बट दे आर कमिंग विद द नॉट, सो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस बिकम द नेगेटिव सेंटेंस. अभी यहाँ पर सारंग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, that is why I use does with not, because I want to make a negative sentence. So that is why Sarang does not dance well. Again, Ram does not speak English. Ram English बात नहीं करता है. Again, does not is there. Okay, if I write they don't like cricket, उन्हें क्रिकेट पसंद नहीं है. So in general while we are talking we make the sentence do not we use do not with the they. Right, यहाँ पे third person singular सारंग है, राम है, so we have used does not, but they, I they you we, whenever we use do not. That means first person और second person के लिए do, third person singular के लिए we use does not. यह चीज आपने याद रखनी है. Okay, now one more example we will see. I don't exercise every day. So again I made a negative sentence here by using do not or don't. तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ यहाँ पर इतना ही फर्क आया है. बाकी आप देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर नॉट डाला गया है एंड सेंटेंस बिकम्स अ नेगेटिव. पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट डाल दिया. इज दिस कांसेप्ट क्लियर विथ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज yes no type sentence. Yes no type sentences always starts with the yes no type sentences always starts with the helping verb. कौन से helping verb बताए थे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर? do does, is that it? तो हमेशा यह इस प्रकार के वाक्य हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होते हैं
तो डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सो विल टेक वन एग्जांपल हियर, वन एग्जांपल, do I look? Question mark is there, very important. Question mark we have to put there in the last, don't forget. So do I look beautiful? क्या मैं सुंदर दिखता हूँ या सुंदर दिखती हूँ? Isn't it? So you can see in this sentence I have used do as a helping verb because I is a first person, isn't it? I यहाँ पर first person है in singular form. So that is why I used do as a helping verb. So इसका जवाब एक तो आप yes में दे सकते हैं या no में दे सकते हैं. आपने yes कह दिया तो भी मुझे जवाब मिल गया, no कह दिया तो भी जवाब मिल गया. Isn't it? मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. Yes you do, हाँ तुम दिखते हो, और no you don't, नहीं तुम नहीं दिखते हो. Isn't it? So what I mean to say here, whenever we talk about yes no type sentences, always starts with the do when we are talking about first person and second person. चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, we use do. But when we talk about third person singular, we have to use does as a helping verb. We have to use does as a helping verb. तो कौन कौन से हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर? He, she, it, noun, isn't it? He, she, it, singular noun or proper noun, they are considered here as a third person singular. So let's see. Does she sing a song? क्या वह गाना गाती है? Does she sing a song? So whenever third person, be sure we have to use does. In negative, again, does not. Right? So do not, do I look beautiful? Does she sing a song? Again, do they draw a picture? Do they draw a picture? क्या वह चित्र निकालते हैं? Okay. So again, do I is used here as a helping verb. If I use, again I want to use does. Does it? It हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए होता है it का उपयोग? किसके लिए यूज करते हैं it? Yeah, for non-living things, for animals, for birds, for trees, bushes, isn't it? तो जो चीज जिसके अंदर बेजान चीजें जो है उसके लिए हम it का उपयोग करते हैं. So does it rotate fast? Does it rotate fast? क्या वह जोर से चलता है? What am I talking about? What am I talking about? यहाँ पर क्या चल रहा है जोर से? Fan. So does it rotate fast? क्या वह fast चलता है? So I'm talking about it, which is a third person singular, and right, it's a non-living thing, fan. So that is why I used does for it. तो यह चीज आपको याद रखनी है, do कब यूज करना है और does कब यूज करना है, यह चीज आपको याद रखना जरूरी है. Is this concept clear? Done? Okay. Now the last type, that is WH type. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा. पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नट लगा दिया, बन गया नेगेटिव. इज इट? अभी यस नो टाइप का हमने देख लिया. द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब. व्हेन वी टॉक अबाउट WH, सिर्फ WH वर्ड इन द बिगिनिंग इट कम्स. लेट्स सी नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर WH टाइप सेंटेंसेस. ओके, सो WH टाइप सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द WH words, isn't it? WH type sentences always starts with the WH word. So let's see. WH plus do does plus subject plus V1 plus object plus question. सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, बाकी तो सब आपको समझ में आ रहा है. आई होप सो. सो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोगों ने जो yes no टाइप सेंटेंस देखा था ना, उसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही था. यू कैन चेक अगेन, जस्ट चेक इन योर नोटबुक. हमारा जो yes no टाइप का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो सिर्फ इस प्रकार था. डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क.
बट when we are talking about WH टाइप, सिर्फ WH वर्ड शुरुआत में लगा दीजिए और कुछ भी नहीं करना है. यह सारे रूल्स सेम अप्लाई होते हैं सारे टेंसेस के लिए. ओके, सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है समवेयर, बट इन मोस्ट ऑफ द टेंसेस वी यूज द सेम स्ट्रक्चर. अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पॉजिटिव का नेगेटिव तो आपको पता है किस तरह करना है. हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, और यस और टाइप के साथ सिर्फ आगे WH वर्ड लगा दिया, इट बिकम्स WH टाइप एंड नथिंग एल्स. कितना इजी है, isn't it? हम लोग वाक्य देखेंगे, then we will make comparison between these 4 types of or the structures. Okay, let's see. So मैंने पहले वाक्य बताया था, do I look beautiful? I'm talking about girl here. Okay, we never use beautiful for masculine, isn't it? So I'm talking about a girl here. Why do I look beautiful? मैं सुंदर क्यों दिखती हूँ? Maybe she is very good with her talent. No, there are so many things considered while she's when we are talking about a girl. जब जैसे मैंने आपको बताया था, मिस यूनिवर्स मिस इंडिया का जब भी कॉन्टेस्ट होता है, सिर्फ चेहरे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. They look how intelligent she is, the way she talks, her body language. There are so many things they consider about, isn't it? सिर्फ चेहरा ही सब कुछ नहीं होता है, isn't it? So what I'm talking here, I used why here. Why मतलब मैं सुंदर क्यों दिखती हूँ, that is another thing. But what I mean to see here, can we use any another WH word here? Can we use another helping WH word here? How use कर सकते हैं? Can we use how? अगर how use करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वाक्य के अंदर जो adjective है वह उठाना पड़ेगा. Which is an adjective in this sentence? Beautiful, isn't it? विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं adjective. So how always goes with the adjective. So how beautiful do I look? मतलब मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ. If I want to use how, मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ. Okay? ये हो गया first sentence. Now I am going to say, I am going to take one more example here. Okay? Let's take one more example here. Why does Rajnikant play many roles? मतलब एक मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल्स क्यों करता है? लेकिन जैसे हम लोगों ने मूवी देखी थी विच वॉज अबाउट रोबोट, रोबोट व्हाट वाज इट, जिसके अंदर रोबोट बन गया था, उसका सेकंड पार्ट जो था दैट आल्सो केम विद ऐश्वर्या राय. सो व्हाट आई मीन टू सी हियर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज डज एंड आई एम आल्सो यूजिंग व्हाई. सो व्हाई डज रजनीकांत प्ले मेनी रोल्स इन अ मूवी? एक मूवी के अंदर उसने बहुत ज़्यादा रोल्स क्यों किए हैं? कैन वी यूज एनी अनदर WH वर्ड हियर? अगर मुझे विच यूज करना है तो विच का क्या मतलब होता है? कौन सी. So how can I use which by using WH word? In which movie? Can I say that? In which movie does Rajnikant play many roles? मतलब कौन सी मूवी के अंदर रजनीकांत ने ज़्यादा रोल्स प्ले किए हैं? ओके, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ उसका यूसेज बता रहा हूँ कि अगर मुझे हाउ यूज करना है तो किस तरह हो जाएगा, अगर मुझे विच यूज करना है तो वह किस तरह से हो जाएगा. In which movie does रजनीकांत play many roles? So मुझे which यूज करना है, in which movie. So it is going with the noun here. तो मैं यही बताना चाहता हूँ WH वर्ड जो होते हैं कभी कभी वह एडजेक्टिव्स के साथ उपयोग उसका होता है या कभी कभी उसका उपयोग नाउन के साथ भी होता है. राइट? ओके, ये हो गया आपको क्लियर? Any doubt, any question with the WH word? Right? Now, एक 2 मिनट सिर्फ मैं आपके 2 मिनट लेता हूँ. I am just making the comparison between these 4 structures. पॉजिटिव हो गया subject plus V1 plus object. नेगेटिव हो गया SES comes there. Okay? Subject plus don't or doesn't. Okay? Plus V1 plus object.
When I'm talking about yes no type, the helping verb goes in the beginning. So do or does plus subject plus human plus object plus. Okay. When I'm talking about WH type, only WH word comes in the beginning. तो आप ध्यान दे सकते हैं ये सारी चीजें सारे ग्रामर के अंदर सारे टेंसेस के अंदर सेम चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, सेम चीजें हैं। मतलब ये हो गया पॉजिटिव, इसके अंदर मैंने डू नॉट डजंट लगा दिया। बाकी देखिए S1 प्लस V1 S+1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड लग गया, दैट इज नॉट, इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यस नो टाइप, डू डज से शब्द की वाक्य की शुरुआत हुई है। सो डू डज प्लस S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके आगे सिर्फ हमने WH वर्ड लगाया है, बाकी स्ट्रक्चर रिमेन्स एज इट इज। सो दैट इज व्हाई अगर ये आपको यह चीज समझ में आ गई, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन इन द फ्यूचर एज वेल। तो जैसे जैसे मैं टेंस बताऊंगा मेरे ख्याल से आप ही मुझे आंसर बताते जाएंगे, सर दिस इज हाउ जनरली वी कैन राइट द आंसर इन पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। सो दिस इज हाउ जनरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसेस। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, टेंस आपके जेब में है या आपके पर्स में है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेस, राइट। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वह खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया, शुरू ही नहीं हुआ था कि खत्म हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट present continuous tense. What is present continuous tense? Shall we take present continuous? We'll take positive and negative sentences of the present continuous because still we have 10 minutes left here, right? So we are talking about present continuous tense. Present continuous tense का मतलब वह होता है जब वह कार्य चल रहा होता है। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर कैमरा चल रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पर कोई लिख रहा है, कोई स्क्रीन की तरफ देख रहा है, यहाँ पर फैन चल रहा है। तो अभी जो अपने आंखों के सामने हो रहा है, सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस और स्टेट्स आर कॉल्ड एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारे सामने हो रहा है। सो फर्स्ट हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट, अभी दूसरा प्रकार है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 वाक्य हम लोगों ने खत्म कर दिए। 48 में से -4 हो गए, कितने बचे? 38, 42, कितने थे हमारे? सॉरी 44 आते हैं, 44 आर रिमेनिंग, 4 माइनस हो गए, 44 बचे हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। We are talking about present continuous tense. अभी जैसे ही मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा पॉजिटिव का, मुझे नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप ही बताएंगे कि क्या होने वाला है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द स्ट्रक्चर हियर, ओके। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस, दैट मीन्स अगर आपको यह समझ में आ गया तो टेंस तो हम लोग मेरे से 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं। इट माइट नॉट टेक मोर टाइम। So let's see. If I'm talking about positive sentence, so the structure becomes subject plus am is are. Okay. Subject plus am is are plus V4 plus object. अभी यह present continuous tense है, इसीलिए am is are लिया है। Okay? अगर past होता तो इसी की जगह was verb लग जाता, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो इसके जगह में विल भी लग जाता। फ्यूचर में आप जब देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, बट राइट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ हियर सब्जेक्ट, हमको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट है, आई, दे, यू, वी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, दे ऑल आर द सब्जेक्ट्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एम इज आर, उसका उपयोग किस तरह से करते हैं? एम के साथ कौन सा बंदा जाएगा, इसके साथ कौन जाएगा और आर के साथ कौन जाएगा? व्हेन वी टॉक अबाउट आई, वी ऑलवेज गोज विद द Yes, we always go with the I. So I के साथ am ही जाएगा, जोड़ी टूटनी नहीं चाहिए, ये दोस्ती टूटाई जी नहीं, isn't it? So that is why it always goes with the am, that is I am. We never say he am, she am, we never do it. So I am. इसके साथ he, she, it, singular noun, proper noun,
isn't it? सिंगल नाउन का मतलब है मुझे कहना है a cat, a dog, a horse, isn't it? A tree, isn't it? They all are the singular noun which are क्या कहते हैं उसको, निर्जीव, isn't it? और the animals which are alive, जो जिंदा animals है जिसको generally considered. Now when I'm talking about are here, are हम लोग यूज करते हैं for plural noun. Plural noun कौन कौन से हैं? We, they, then, yeah, you. You सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, राइट? You सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, राइट? जैसे मतलब मैंने अभी कहा you are sneezing, तुम छींक रहे हो, just an example. You all are sneezing. What happened to all of you? आप सब छींक रहे हैं, क्या हो गया आप सबको? So that means you I use for singular and plural noun as well. So that is why you go with the are. तो यह जोड़ी जो है यह ऐसी ही रहनी चाहिए, right? So be sure about this. I am, he is, she is, it is, a dog is, and proper noun है ये, okay? This is proper noun. Ram is. When I talk about are, we are, they are, students are, and you are. इस प्रकार से जोड़ी बननी चाहिए हमेशा, okay? Now let's see the sentences. क्या आपने ये लिख लिया? लिख लिया? Okay. Now shall I change the screen because I want to write the examples. Now I'm talking here about I am. I am. I am learning. I am learning German nowadays. आजकल मैं जर्मन सीख रहा हूँ. What is it? German? A language, isn't it? I am talking about language here. So I am learning German nowadays. मतलब आजकल मैं सीख रहा हूँ, मतलब वह कार्य हो रहा है, but not right now. मैं अभी नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं सीख रहा हूँ. That means things generally which are in generally going on, there also we use present continuous tense. तो यहाँ पर वही हो रहा है. Subject यहाँ पर I है. This is our helping verb. And is are हम लोगों ने सीखे थे helping verb. In simple tense, do does. In continuous tense, am is are. So I am. This is V4 क्रियापद का चौथा रूप. And remaining sentence we can consider as an object. अगर देखा जाए, this is a noun. And nowadays, what is nowadays? कौन सा grammatical concept हो जाएगा? Degree? Degree नहीं होगा. Can we say adverb of frequency? Nowadays frequency कितनी बार हो रहा है? मतलब आजकल मैं सीख रहा हूँ, रोज सीख रहा हूँ. Nowadays आजकल मैं सीख रहा हूँ. अगर देखा जाए we can still segregate a sentence, but we don't want that. So यहाँ पर मैंने I के लिए am use किया है, before use किया है और object use किया है. When I talk about the third person singular, I use she is cooking Thai food. She's cooking Thai food. मतलब वो Thai food बना रही है. So again here, this is subject, helping verb, and before object. When I want to use are, we are. We are celebrating his birthday. हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. So again here, we subject, are helping verb, before. This is very important for us to learn. So I के साथ am, he, she, it singular noun के साथ is, and we, they, you के साथ are, and with the plural noun as well. So that is why this helping verb is very important for us to know. Okay? अभी ये हो गया positive sentence. अभी अगर मुझे नेगेटिव करना है, so what I should do? Negative structure हो जाता है. After am is are, we just add not, and the sentence becomes negative. तो
पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज इट? सब्जेक्ट प्लस एंड इज आर प्लस, अभी मुझे नेगेटिव करना है, सिर्फ मैं नॉट लगा दूँ, सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, यार ये तो कुछ भी नहीं है, खामखा हम लोग इसको डरते हैं, isn't it? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, और येस्टरडे के साथ WH लगा दिया तो WH हो गया, एंड नथिंग एल्स। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर टेंसेस इफ यू नो द स्ट्रक्चर्स वेरी वेल। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फॉर्म नाउ। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? क्या करना चाहिए? फॉलो द स्ट्रक्चर। I am not learning German nowadays. मैं आजकल जर्मन नहीं सीख रहा हूँ। Okay? Second example. She is not cooking Thai food. She is cooking Indian food. Third one. Very good. We are not celebrating his birthday. We are celebrating her birthday. His और her में फर्क है. His we use for लड़का, isn't it? Masculine, and we use her for feminine. Okay? So if I put only not here, the sentence becomes negative and nothing else. और कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा दिया, सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव एंड नथिंग एल्स, राइट? तो आपको अब हम लोगों ने 6 प्रकार सीखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार सीखे हैं, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हमने देखे हैं। Any doubt, any question here? Any doubt, any question? Okay. हम लोग जब कल मिलेंगे, we'll see again tomorrow the remaining types of sentences. Okay? If you have any doubt, please write it down. We'll discuss tomorrow. Students online, any question, any doubt with you? Please ask me if you have. So we'll stop here and I'll see you again tomorrow. Okay? Thank you so much. Okay. Thanks. Thanks, Abhijit, Shubham. See you again tomorrow, all of you again.